Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back, and today my task is to explain to you one more concept which is of chapter number 2 in secretarial practice, yes, for 12th standard. Okay, so लास्ट टाइम हमने क्या किया है, पिछले दो लेक्चर्स से आई थिंक सो, ये वाले चैप्टर में हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं। मेहनत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी का दर्जा जो हमको पाना है वो आसान नहीं होता है। तो चैप्टर नंबर 2 की जो वेटेज है वो मैं आपको हमेशा याद दिलाता रहूँगा, सो दैट यू नो कि हाँ, मुझको इतने मार्क्स के लिए ये चैप्टर में मेहनत करनी है। नाउ चैप्टर की शुरुआत में आपको ये बताया गया था कि सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, कि एक कंपनी जो होती है, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होती है, उसका स्रोत का मतलब है सोर्सेज, पैसे का कहाँ से है। दो, अंदर बाहर मतलब क्या है कि कंपनी इंटरनली अपने खानदान वालों से जो पैसा लेती है उसको आप इंटरनल कह सकते हो, और बाहर वालों से जिसके साथ में कोई खून का रिश्ता नहीं है उसे आप बोरोड फंड्स कह सकते हो। हमने थोड़ा आइडिया ले लिया कि इसको ढंग की भाषा में, अच्छी अंग्रेजी भाषा में कहते हैं ओन्ड कैपिटल, बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल की ओर हमारा नज़र अभी नहीं है क्योंकि उसके लिए थोड़ा वक्त है। हम ओन्ड कैपिटल समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओन्ड कैपिटल के अंदर दो चीज़ें हैं, शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग की ओर हमारा नज़र अगेन नहीं है। क्यों? उसके लिए भी समय है। हर चीज़ के लिए एक समय होता है। ओके, जब मैं कोई पवित्र शास्त्र पढ़ता हूँ तो उसके अंदर लिखा गया है कि हंसने का, रोने का, बोने का, काटने का ओके समय होता है। तो उसी तरह रिटेन्ड अर्निंग का एक समय है। आज किसका समय है? पिछली बार हमने सीखा इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, उसका डेफिनेशन क्या है, उसके फीचर्स क्या है। आज हम सीखेंगे प्रेफरेंस शेयर्स। आगे जाने के पहले मैं जल्द से आपको समझा देता हूँ। अगर आप एक बैंक में जाओ और आप बैंक वालों को बोलो मुझे यहाँ पे एक खाता शुरू करना है, आई वॉन्ट टू स्टार्ट एन अकाउंट हियर, द बैंक वाला विल आस्क यू, सर विच अकाउंट ऑन अ मेन्यू। ओके, जस्ट लाइक इफ यू गो टू अ साउथ इंडियन रेस्टोरेंट एंड इफ यू आस्क आज क्या है खाने में, तो मतलब वो जो वेटर है ना, टिपिकल बॉलीवुड स्टाइल के अंदर स्टार्ट कर देगा। ओके, मेंदू वड़ा, दाल वड़ा, बटाटा वड़ा, सॉरी बटाटा वड़ा नहीं रहेगा, बट वट एवर आर दी आइटम्स, ओके, अपम उपम, वो मसाला डोसा स्टार्ट कर देगा। यू विल बी लाइक अरे इतनी चीज़ें हैं, मैं सब तो नहीं ले सकता हूँ मैं। सिमिलरली व्हेन यू गो टू अ बैंक, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, अरे
मैं इतने अकाउंट्स तो थोड़ी स्टार्ट कर सकता हूँ, मेरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली ना कंपनी, अगर एक कंपनी में आप शेयर्स खरीदते हो, आप बन जाते हो शेयर होल्डर, बराबर। इफ आई हैव दिस रिमोट इन माई हैंड, आई एम अ रिमोट होल्डर, सो सिंपल। इफ आई हैव गॉट शेयर्स इन माई हैंड, देन आई बिकम अ शेयर होल्डर। वेरी इंपॉर्टेंटली, अभी मुझको क्या समझना है, बट मेरे हाथ में कौन से शेयर्स है, क्योंकि जब मैं कंपनी में गया था, कंपनी के वेबसाइट पे गया था, उन्होंने मुझे 2 ऑफर दिए, सर डू यू वांट इक्विटी शेयर्स, डू यू वांट प्रेफरेंस शेयर्स। सो फर्स्ट आई वांटेड टू नो ये इक्विटी शेयर्स क्या होता है, ये प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है। फॉर दैट यू हैड टू लुक एंड लिसन एंड लर्न फ्रॉम द लास्ट लेक्चर। एंड अगर आज का काम आप समझोगे तो आपको प्रेफरेंस शेयर्स भी कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। मैं सिंपल शब्दों में आगे जाने के पहले आपको याद दिला देता हूं कि इक्विटी शेयर्स अगर आप लेते हो तो जो पैसा आपने कंपनी में निवेश किया है, इन्वेस्ट किया है ना, तो ही तो आपको शेयर्स मिलेंगे, वो परमानेंट होता है। गई पैसा गया, बराबर। एकदम रेयर ओकेशंस में, 14वीं का चांद, वंस इन अ ब्लू मून, आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो पैसा आपको वापस मिलेगा, वो भी आपकी मर्जी की वजह से नहीं, कंपनी की मर्जी की वजह से। बट जब आप प्रेफरेंस शेयर्स खरीदते हो, प्रेफरेंस वर्ड का मतलब क्या है, पहले में, नॉर्मली, ओके, जब इज्जत देनी है किसी को, व्हाट आर द करेक्ट मैनर्स, मम्मी पापा पढ़ाते हैं, पहले आप, फिर हम जाएंगे। यू रिस्पेक्टिंग द ऑपोजिट। प्रेफरेंस का क्या है, नो 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 नो, पहले में कुछ हो रहा है, पहले में वो हो रहा है, पहले में प्रेफरेंस, पहले में। मेनी टाइम्स अगर आप कोई अवार्ड शो के लिए जाओ या कोई भी डांस परफॉर्मेंस के लिए जाओ, आप कॉमेडी के लिए जाओ, आप कहाँ पर भी जाओ जहाँ पे किसी तरह का परफॉर्मेंस हो रहा है, आप जाके आपके जगह पे बैठ जाओगे। मुझको ये सीट मिला, मैं जाके बैठ गया, और एंड में कोई वीआईपी आता है और उसको एंड रो में नहीं, सीधा आगे लेके जाते हो, फ्रंट रो सीट। आप पूछते हो इसको काय को प्रेफरेंस मिला रे, मतलब हम लोग तो पहले से ही थे, ये आते ही सीधा आगे चला गया, प्रेफरेंस, पहले में। सो देयर आर मेनी ओकेशंस, परिस्थितियां, सिचुएशंस, जहां पर अगर इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर आमने सामने खड़े हैं और अगर कुछ होता है, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर का फायदा होता है, उसके बाद में नजर जाती है इक्विटी शेयर होल्डर पर। सो प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेफरेंस। पहले, वो पहला कब, किस परिस्थिति में होता है, विच सिचुएशन, आई विल एक्सप्लेन टू यू जैसे ही हमारी ये गाड़ी आज थोड़े थोड़े करके आगे जाती है। लास्ट टाइम इक्विटी शेयर्स के हमने फीचर्स पढ़े, परमानेंट कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड, राइट्स, नो प्रेफरेंशियल राइट, ये इसके कनेक्शन में था, कंट्रोलिंग पावर, रिस्क, रेसिडुअल, क्लेमनेंट, बोनस शेयर इशू से, ऑल ऑफ दीज, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दीज विल बी रिपीटेड वंस अगेन। बट नाउ ये जो हम देखने वाले हैं, ये पॉइंट्स को, नजरिया हमारा बदल जाएगा। इट विल बी एज पर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर कि बोनस लिखा है मेरे को मिलता है, राइट इशू लिखा है मेरे को मिलता है, मार्केट वैल्यू लिखा है मेरा क्या होता है, हाँ, यही सब चीजें आपको देखनी है लगभग, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर के नजर से। नेक्स्ट के टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स थे, यस, A and B, 1 and 2, but when it comes to preference share and its type, there is a long list, 8. Today we are not getting into types, next time हम types करेंगे। आज let's understand कि सर ये preference share होता क्या है। well, तो चक्कर ऐसे है, ऊपर लिया गया है, as the name indicates, what does the name show, these shares have certain preferential right, हक, distinct from those attached to equity shares, equity shares के जो हक होता है उससे अलग होकर प्रेफरेंस शेयर्स को हक दिया जाता है, राइट दिया जाता है, प्रेफरेंस दिया जाता है पहले में। किस में, पहला, द शेयर्स विच कैरी फॉलोइंग प्रेफरेंशियल राइट्स आर टर्म्ड एज प्रेफरेंस शेयर्स। कौन से हक, ए, अ प्रेफरेंशियल राइट एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। अगर एक कंपनी 50 साल के लिए चली, 50 साल के लिए, और 50 सालों में सोचो आप और आपका भाई, आपके भाई के पास थे इक्विटी शेयर्स और आपके पास थे प्रेफरेंस शेयर्स। कंपनी ने पैसा कमाया, प्रॉफिट कमाया, वो प्रॉफिट का थोड़ा हिस्सा आपको मिलना चाहिए, आपके भाई को मिलना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, सर मेरे पास प्रेफरेंस है, भाई के पास इक्विटी है, दोनों को सेम टाइम पे मिलेगा? नहीं, आपका नाम क्या है, प्रेफरेंस, पहले में, पहले आपको पैसा मिलेगा। सो व्हेन द कंपनी कम्स टू डू डिस्ट्रीब्यूशन, वो क्या बोलेगी, प्रेफरेंस वाला कौन है, आप हाथ उठाओगे, अच्छा पहले आप पैसे रखो,
देन इक्विटी वाला, अच्छा अभी तो आजा, अब तू पैसे रख। सो फर्स्टली व्हेन द कंपनी इज गिविंग डिविडेंड, जो नॉर्मली हर कंपनी हर साल देती है, सबसे पहले डिविडेंड किसको दिया जाता है? प्रेफरेंस वाले को। और अगर बचा, कम बचा, ज़्यादा बचा, जो भी है, अगर बचा, इक्विटी वाले को मिलता है। हाँ, और ये जो डिविडेंड होता है ना, ये पक्का होता है, फिक्स्ड होता है। ये आगे जाके मैं डिस्कस करूंगा। फिक्स का मतलब क्या है? अगर आप एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, बराबर, और भाई आपका इक्विटी शेयर होल्डर है, तो आपको जो डिविडेंड मिलता है, कंपनी जो आपको प्रॉफिट का हिस्सा देती है, बराबर, वो हर साल सेम रहेगा। अगर आपको 2015 में मेरे को मिला 2000, हाँ तो 2016 में भी 2000 ही मिलेगा, 20,000 नहीं होगा। 2017, 18, 19, 20, 2000, 2000, 2000। हाँ, बट भाई जो है ना, भाई इक्विटी वाला, उसको कभी 20 रुपया, कभी 2 रुपया, कभी 20,000, कम ज़्यादा होता है। फ्लक्चुएटिंग, इक्विटी वाले का फ्लक्चुएटिंग, आपका फिक्स्ड, बराबर। और दूसरा, अ प्रेफरेंशियल राइट एज टू द रिटर्न ऑफ कैपिटल इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी कभी बंद हो गई, यू सी, जब एक शिप, बड़ी सी शिप, अगर कुछ हो गया और वो डूब रही है, कैप्टन हमेशा एक दिमाग में ऑर्डर रखता है कि पहले कौन बाहर जाएगा, किसको हम रेस्क्यू करेंगे। सीनियर सिटीजन्स, लेडीज, चिल्ड्रन, बराबर, दे थिंक, ऑर्डर होता है। सिमिलरली जब एक कंपनी बंद हो रही है, कंपनी को पैसा लौटाना पड़ेगा। किसको पैसा लौटाना पड़ेगा? पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उसका नाम प्रेफरेंस है, और दूसरा इक्विटी शेयर होल्डर। सो प्रेफरेंस मतलब पहले, बट किस मामले में पहले? दो मामले में पहले। जब हर साल डिविडेंड बंटता है, पहले प्रेफरेंस। जब कंपनी बंद हो और पैसा लौटाना पड़े, पहले प्रेफरेंस। इफ यू लुक एट द बॉटम ऑफ दिस, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर co-owners of the company, yes, but not controllers. Very important. Equity shareholders are controllers. इक्विटी शेयर होल्डर्स के हाथ में, अगर आप गेम की बात करो, जॉयस्टिक होता है, गाड़ी की बात करो, स्टीयरिंग व्हील होता है। ओके, इक्विटी शेयर होल्डर्स मीटिंग में आते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स वोटिंग करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, क्योंकि हो सकता है आप बोलो सर अगर प्रेफरेंस वाले को ही ये हक है, वो हक है, तो कोई क्यों इक्विटी शेयर्स ले? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दो ही मामले में हक है, दो ही मामले में वो टॉप पे आते हैं, जो मैंने समझाया। बाकी सभी मामले का कंट्रोल किसको पास है? इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर चाहे तो कंपनी इस डायरेक्शन में जा सकती है, उस डायरेक्शन में जा सकती है। आज हम इक्विटी के डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। हाँ, सो द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स are co-owners. They are not controllers. They are not controllers. Equity shareholders are controllers. These shares are purchased by cautious investors. I'll come to that. Who are interested in safety of investment. बराबर? क्यों सेफ्टी? क्योंकि आप और आपका भाई, याद है, आपको हर साल एक कुछ भी हो जाए मेरे को 2000 मिलेगा। भाई इक्विटी शेयर होल्डर, मेरे को पता नहीं क्या मिलेगा, वो ऐसा सोच रहा है। कभी 20 मिलता है, कभी 2 मिलता है, कभी 2000 मिलता है, कभी 4000 मिलता है, पता नहीं। हाँ, तो जिन लोगों को सेफ्टी चाहिए, नहीं भाई मेरे को तो सेम ही रिटर्न चाहिए हर साल, वो लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स खरीदते हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। आई होप दैट द मीनिंग वॉज अंडरस्टूड बाई यू। गाड़ी आगे लेके जाते हैं, और आज का मुद्दा फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। जैसे था फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, वैसे अगर आपके पास में प्रेफरेंस शेयर्स है, व्हाट आर द फीचर्स, व्हाट आर द गुड एंड द बैड एंड द अगली। पहला, प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड, ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू। जब कंपनी, एवरीबडी, सर डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड प्रॉफिट का एक हिस्सा है, अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो कंपनी कमाती है, अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा था। ओके, बट जब कोई भी चीज बांटा जाता है, एक लाइन लगाया जाता है, एक लाइन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, बराबर, तो द अथॉरिटीज विल मेक श्योर जो सबसे जरूरतमंद है, मतलब एक सीक्वेंस दिमाग में होता है, पहला कौन खड़ा रहेगा, दूसरा कौन खड़ा रहेगा, आखिर में कौन खड़ा रहेगा। यहां के लाइन में, डिविडेंड बांटने के लाइन में, पहला प्रेफरेंस शेयर होल्डर खड़ा रहता है। वो लेट भी आएगा, तो भी उसको पहले लाइन में खड़ा किया जाएगा। इट इज नॉट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, नहीं। प्रेफरेंस आप टाइम पे आओ या टाइम के बाद आओ, पहले डिविडेंड आपको मिलेगा। ओके, दूसरा, वो भी हमने कुछ हद तक डिस्कस कर लिया। प्रेफरेंस फॉर पेमेंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल मतलब जो पैसा आपने कंपनी में निवेश किया है, इन्वेस्ट किया है, बराबर। इक्विटी वाला जब पैसा डालता है ना, वो तो भूल ही जाता है वो पैसा।
क्योंकि उसका सोच जो सही है, मेरे को तो ये पैसे अभी मिलेगी ही नहीं, बराबर, वो परमानेंट कैपिटल होता है। बट प्रेफरेंस इज नॉट परमानेंट, इट इज टेम्पररी कैपिटल। द प्रेफरेंस शेयर होल्डर नोज, अरे 5 साल बाद, 10 साल बाद, 8 साल बाद हमको पैसे मिल जाएंगे, कंपनी ने लिख के दिया है, डेट लिख के दिया है, माई कैपिटल विल कम टू मी। स्पेशली अगर कंपनी बंद होती है, अगर बंद होती है, खुदा ना खास्ता, the company shuts down because unfortunately it has not been able to meet the orders, it has not been able to make the modern changes, कंपनी बंद हो जाती है, तो शेयर होल्डर्स को पैसा लौटाना पड़ता है। सबसे पहले किसका पैसा लौटाएंगे? प्रेफरेंस शेयर, बाद में अगर होए तो इक्विटी शेयर होल्डर। नेक्स्ट, फिक्स्ड रिटर्न also discussed, because all of this when I was explaining to you, मेरे को obviously आपको बताना पड़ा कि कंपनी प्रॉफिट का हिस्सा प्रेफरेंस वाले को भी देती है, इक्विटी वाले को भी देती है, बट प्रेफरेंस वाले को जो देती है वो पक्का देती है 2000, हाँ, नेक्स्ट ईयर 2000, नेक्स्ट ईयर 2000, नेक्स्ट ईयर 2000, अरे फिक्स्ड है, हाँ बराबर, ऊपर नहीं जाता नीचे नहीं जाता, ऊपर नहीं जाता नीचे नहीं जाता, फिक्स्ड। जैसे कुछ दुकान में होता है ना, मैडम हम बार्गेनिंग नहीं करते, फिक्स रेट, यही रेट में आप चाहो तो आप ले सकते हो, वरना आप आगे जा सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेचर ऑफ कैपिटल। व्हाट डज दैट मीन? अरे इक्विटी वाला जब पैसा डालता है कंपनी के अंदर, वो परमानेंट होता है? नहीं, प्रेफरेंस वाले का नहीं, टेम्पररी है। टेम्पररी है मतलब क्या है? व्हेन यू पुट मनी इन अ कंपनी एंड बाय प्रेफरेंस शेयर्स, नो फॉर श्योर, जान लो, पहचान लो, क्या? अरे आपको पैसा आपका मिल जाएगा, 5 साल, 10 साल, 8 साल, कंफर्म्ड मिल जाएगा। 50-50 नहीं है, कंफर्म, क्योंकि द मनी दैट यू पुट इनटू अ कंपनी, इफ यू आर अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इट्स टेम्पररी, इट विल come back to you. If you read what has been given, preference share capital is safe capital, safe capital. Risk capital is equity का, as the rate of dividend and the market value does not fluctuate. I'll come to the market value, but the rate of dividend is the same and the money will come back to you. Next, अब आते हैं हम मार्केट वैल्यू के मुद्दे पे। इक्विटी शेयर होल्डर का जो मार्केट वैल्यू है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इक्विटी शेयर जब आप खरीदते हो, बराबर, उसका आज जो प्राइस है वो 2 रुपया हो सकता है, वो 20 रुपया हो सकता है, 200 हो सकता है, 2000 हो सकता है। मीनिंग सर शेयर तो वही है, बट इसका जो मार्केट में भाव है इक्विटी वाले का, ऊपर ऊपर ऊपर, नीचे नीचे नीचे, ऊपर ऊपर ऊपर, नीचे नीचे नीचे। प्रेफरेंस वाले के साथ ऐसा नहीं होता। प्रेफरेंस वाले का जो मार्केट वैल्यू है, इट रिमेन्स द same. There is no ऊपर, there is no नीचे, it remains the same. Equity, all of these points are features as well as they are distinction points, जो हम अगली बार करेंगे कि सर उसका डिविडेंड का क्या, इसका कैपिटल का क्या, उसका मार्केट वैल्यू का क्या, इसका फेस वैल्यू का क्या। डिस्टिंग्विश ऑटोमेटिकली फीचर्स से ही पैदा होता है। मार्केट वैल्यू एज फार एज प्रेफरेंस शेयर्स आर कंसर्न ऊपर नीचे नहीं होता है, इट रिमेन्स द सेम। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या? वोटिंग राइट्स। नॉर्मली याद रखना, क्या? प्रेफरेंस वाले को कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता। प्लीज नोट। तो सर नहीं मिलता तो नहीं मिलता, चलेगा ना? नहीं, क्योंकि जब तक गाड़ी चलाने का मजा, गाड़ी चलाने का मजा, ओके, कब है? जब गाड़ी आपके बताए डायरेक्शन में जाए। आप लेफ्ट करो लेफ्ट, आप राइट करो राइट, मजा भाई मेरे हिसाब से चल रही। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो गाड़ी में बैठा है, उसका ड्राइवर इक्विटी है। इक्विटी वाला जो डिसाइड करता है, ये कंपनी ये प्रोडक्ट बनाएगी, इतने ऑर्डर्स लेगी, यहां पे ब्रांच स्टार्ट करेगी, कंपनी क्या करेगी? इक्विटी शेयर होल्डर मीटिंग में, रेजोल्यूशन में वोट करके डिसाइड करता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर ना सिर्फ तमाशा देख सकता है, अच्छा अच्छा ऐसा किया, अच्छा अच्छा वैसा किया। देयर आर ओनली वेरी यूनिक सिचुएशन, एकदम यूनिक सिचुएशन, जहां पे जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को असर मारेगा, उनके हक को असर मारा जाएगा, तो वो वोट कर सकते हैं, वेरी यूनिक सिचुएशन में। अदरवाइज जनरली कंपनी के ऑपरेशंस में कंपनी क्या करेगी, कैसा करेगी, कब करेगी, ये सब डिसाइड करने के लिए वोटिंग राइट प्रेफरेंस शेयर वाले को नहीं है, इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले को डेफिनेटली है। नेक्स्ट, रिस्क।
इक्विटी शेयर होल्डर वाला सबसे ज़्यादा रिस्क लेता है, बिकॉज वो जब मंडे सोकर ट्यूसडे उठता है उसको पता नहीं उसके शेयर का मार्केट वैल्यू क्या होगा, उसको नहीं पता, उसको पता नहीं उसको डिविडेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसको नहीं पता, वो रिस्क लेता है। एवरी डे इज एन एडवेंचर फॉर एन इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी। कल क्या होगा पता नहीं, परसों क्या होगा पता नहीं। नॉट फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो रिस्क है ना कम, एकदम कम, क्योंकि वो क्या बोलेगा, अरे कुछ भी हो जाए मेरे को तो डिविडेंड मिल रहा है, कुछ भी हो जाए कंपनी का दिवाला भी निकले मेरे को मेरे पैसे पहले मिलेंगे, मेरे को डिविडेंड मिलेगा पहले, मेरे को मेरे पैसे पहले मिलेंगे, मेरा मार्केट वैल्यू मंडे से ट्यूसडे, ट्यूसडे से वेडनेसडे, अरे बाबा सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता, इट रिमेन्स। फॉर द रिस्क एलिमेंट इज वेरी वेरी लेस। रिस्क कौन लेता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स लेते हैं। नेक्स्ट, फेस वैल्यू। नॉर्मली इक्विटी शेयर्स का जो फेस वैल्यू है ना, कभी 1 रुपया कभी 10 रुपया, कम होता है, कम। बट नॉर्मली एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो फेस वैल्यू है 100 रुपीज़ होता है। द इक्विटी शेयर होल्डर्स फेस वैल्यू इज नॉर्मली लेस, ओके, एंड द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फेस वैल्यू इज नॉर्मली more. Face value is the value which is assigned to the shares, बराबर, ताकि वो डिविडेंड के कैलकुलेशन में काम आता है। मार्केट वैल्यू अलग है, जैसे ही मार्केट में डिमांड सप्लाई, कंपनी का परफॉर्मेंस, कंपनी का गुडविल चेंज होता है, वैसे मार्केट में जो भाव है वो ऊपर नीचे होता है। फेस वैल्यू कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है। ओके, नेक्स्ट 2 मुद्दे। एक, इफ यू आस्क मी सर ये राइट इशू क्या होता है, सर ये बोनस इशू क्या होता है, देखो बोनस पहले बता देता हूँ। फ्री के शेयर्स, बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर मतलब शेयर्स मिले वो भी फ्री के, अपनी जेब से 1 भी रुपया नहीं देना पड़ा, यस अच्छी बात है। प्रेफरेंस वाले को ये अच्छी बात नहीं होती। राइट शेयर्स का मतलब क्या है, पहले मेरा हक शेयर्स खरीदने का, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ऐसे तरीके के शेयर्स, राइट शेयर्स के मार्केट में। एग्जाम्पल, अगर समोसा वाला गरम गरम समोसे बनाता है और एक लाइन लगा है, बराबर, तो सबकी इच्छा है ये गरम वाला ना मुझको मिलना चाहिए, मुझको मिलना चाहिए। जो एकदम कतार में पीछे है वो बोलेगा जब तक मैं पहुंचूंगा तब तक तो ठंडा हो जाएगा। हाँ, मतलब यहाँ पे समोसे की तो बात नहीं हो रही है, बट हक की बात हो रही है, राइट इशू, कि पहले हक किसको मिलता है, गरम गरम समोसे लेने का, गरम गरम वड़ा पाव लेने का, पहले हक इक्विटी वाले को मिलता है। प्रेफरेंस वाले का जो हक है ना पहले में, वो सिर्फ 2 मामले में है, वो सिर्फ 2 मामले में है। एक है डिविडेंड पाने का और एक है अगर कंपनी बंद हो जाए तो अपना ओरिजिनल कैपिटल वापस लेने की, अदरवाइज उनको कोई दूसरा खास हक नहीं है। ओके, वैसे ही राइट शेयर्स पाने का हक उनके पास नहीं है, फ्री शेयर्स, बोनस शेयर्स पाने का हक उनके पास नहीं है। ओके, नेक्स्ट, नेचर ऑफ इन्वेस्टर। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स का मतलब है वो बंदे जो बंदियां जो कंपनीज में पैसा डालते हैं। कुछ बड़े जोशीले रहते हैं, बड़े जोशीले, रिस्क लेने के लिए वो हमेशा पहले खड़े रहते हैं। अरे कुछ भी हो जाए चल हम लोग ट्राई करेंगे, रिस्क लेते हैं। नॉट दीज पीपल, प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स लिसनर, वो अपने हर कदम को फूक फूक कर रखते हैं। एवरी स्टेप दे आर वेरी कॉशियस, अंडरस्टूड। कॉशियस का मतलब क्या, अरे गाड़ी चला देखते आगे क्या होएगा, पंचर होएगा, पेट्रोल खत्म होएगा, तू चला। कॉशियस वाला बोलेगा नहीं नहीं नहीं, पहले टायर प्रेशर चेक करो, पहले पेट्रोल टंकी में पेट्रोल चेक करो, पहले नट बोल्ट सब चेक करो, सब चेक करो, सेफ्टी 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 सेफ्टी, मैं तो रिस्क नहीं लूंगा। दैट इज अ कॉशियस इन्वेस्टर, बराबर। हाँ, सो दोज पीपल हु बाय प्रेफरेंस शेयर्स दे आर कॉशियस इन्वेस्टर्स, दैट इज देयर नेचर। उन लोगों को रिस्क लेने का कोई शौक नहीं है। बिटवीन अ सीनियर पर्सन एंड मे बी अ यंग पर्सन, द यंग पर्सन, जवानी का जोश, रिस्क ज़्यादा ले सकता है। सीनियर पर्सन क्या बोलेगा, अब तो हमारा बुढ़ापा हो गया है, हम घर पे बैठेंगे और हम पैसा जो है ना ऐसी जगह पर डालेंगे जहाँ पर हमारा पैसा नहीं डूबेगा, हमको हर महीने इतना इंटरेस्ट ज़रूर मिलता जाएगा। ओके, दीज वर the 10 muddas which was connected as features of preference shares. इक्विटी के ज़्यादा थे, इसके थोड़े कम।
बट ये 10 मुद्दे सर मैं कैसे याद रखूँ? वेल तो आप RBI को याद रखो, आप फोर्ड को याद रखो, आप MRF को याद रखो। ओके सर थोड़ा कुछ अजीब है, क्या कनेक्शन है इनमें? यू सी द फोर्ड कंपनी विच इज़ एन अमेरिकन कंपनी, उनकी परिस्थिति एक ज़माने में बहुत बुरी थी। दे हैड टू सेल पार्ट्स ऑफ देयर कंपनी एंड दोज पार्ट्स वर परचेज्ड बाय टाटा विच इज़ एन इंडियन कंपनी। तो यू कैन इमेजिन कि टाटा विच इज़ एन इंडियन कंपनी के पास इतनी ताकत थी कि वो फोर्ड के पास जाके बोल सके तेरी ये गाड़ी नहीं बिक रही है, दे दे हमको, हम बनाएंगे, हम बेचेंगे। ओके सो फोर्ड रिक्वायर्ड मनी, ओके, एंड मेनी अ टाइम्स द बैंक्स गिव मनी। सो ये कहानी जो मैं बना रहा हूँ कहानी है, काल्पनिक है, इमेजिनेटिव है, ये हकीकत नहीं है। जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू in remembering these 10 points that are connected to the features of preference shares. RBI forces Ford to use new MRF tires. तो RBI ने मदद की फोर्ड कंपनी की, और RBI ने क्या बोला, हम तेरे को पैसा दे रहे, इसके लिए तू डूबने से बचने वाला है, बट तेरे को आगे ध्यान रखना पड़ेगा कि तेरी जो भी गाड़ी बनेगी उसमें नए चक्काचक MRF के टायर्स लगेगी, देसी टायर्स लगेगी। अगेन कहानी काल्पनिक है, इमेजिनेटिव है। ओके टक 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 के सर गूगल करता हूँ मैं, सर ये सच है कि झूठ है? सच नहीं है, हाँ थोड़ी कहानी यहाँ पे, थोड़ी कहानी वहाँ पे, बीच में फेरी टेल है। RBI forces Ford to use new MRF टायर्स। ओके हाँ कैसे याद रखूँ? वेल जो भी हाईलाइटेड एरिया है ना, बाय दैट व्हाट डू आई मीन? RBI, FRD, NMRF. Obviously, it has to be a story. I don't remember. हर लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको जरूर, आई होप इसके बाद जो प्रेफरेंस शेयर्स का मुद्दा है वो क्लियर हो चुका है। अगली बार जब मिलेंगे हम टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स करेंगे और एक डिस्टिंक्शन करेंगे बिटवीन द इक्विटी शेयर्स एंड द प्रेफरेंस शेयर्स। ओके सो डू रिमेंबर दैट लेक्चर्स यहाँ पे एवरीडे प्रीमियर होते हैं, वो 11th के लिए, 12th के लिए, 13, 14, 15 के लिए होते हैं। वो अकाउंट संबंधित रहते हैं, इको के बारे में हो सकता है, OC, SP के बारे में हो सकता है। ओके सो अपने दोस्तों तक ये चैनल के बारे में और ये चैनल की जानकारी और लेक्चर और कंटेंट के बारे में जो फ्री अवेलेबल है दोस्तों तक ज़रूर आप पहुंचा दीजिए। इट वुड बी द गुड न्यूज़। न्यूज़ कैन बी गुड एंड बैड। आप जब ये चैनल के बारे में चर्चा करोगे तो वो हमेशा गुड होगा आपके लिए भी और उनके लिए भी। ओके टिल द टाइम वी मीट अगेन, अपना ख्याल रखिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन नहीं दबाया है तो दबा दीजिए। बड़ों का, छोटों का, ओके, और नाना नानी का, चुन्नू मुन्नू का, ओके, और अपने परिवार वालों का। टेक केयर, गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस। टिल द टाइम आई मीट यू वंस अगेन, स्टे सेफ, बाय फॉर नाउ।